Good evening, everyone. We are going to continue with the same topic, that is modals. In the last video, we have done can and could. Today, we are taking another important pair, that is may and might. As I told you in the last video, may and can both are used in permission, taking and giving. Especially when we use may, at that time we need to remember that may is used in a formal manner. Suppose if you are asking your teachers, a junior is asking, taking permission from his senior. Okay, at that time he will use may. Let's check out the other uses of may. Okay, so the first is permission, as we already said. Example, may I come in? May I drink water? Second is request. When we are politely requesting for something, we use may. For example, may I use your pen? Third is possibility. The possibility of happening something is denoted by may. For example, it may rain today. Next, Basically, this is very common sentence, and everybody is using this sentence. I remember this same example is being given to me by my teachers about 30 years back. We can give more examples as well. जैसे हम दे सकते हैं he may come today. If you are waiting for someone and expecting someone, ठीक है, at that time we can use he may come today. There is a possibility. okay. Next is wish. When you are wishing someone, for example, may God bless you. May you live long. So these are the simple wishes. Or make sure that in the end of this wish, you need to put the sign of exclamation. साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. अब पॉइंट एक और आता है, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, दूसरा इंटरोगेटिव है, तीसरा हमारा सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, दैट मीन्स मे इज आल्सो यूज्ड इन इंटरोगेटिव्स एंड मे इज आल्सो यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल. इट मे नॉट रेन टुडे. ओके, नेगेटिव फीलिंग भी देता है साथ में. मेक श्योर दैट कि नॉट के साथ भी मे यूज होता है. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है क्या? माइट. So might is the past tense of may. As we told yesterday, can का past tense था हमारा could, तो may का past tense है might. पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है, बेसिक चीज है. Okay. And may is changed into might while doing narration. For example, he said, it may rain today. So it will be changed to, he said that it might rain that day. So here may is changed into might. And might is used as a modal in all the situations similarly as may. For example, permission, request, possibility and wish. Make sure that you remember that while changing narration को हम reported speech भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. उसमें हम इसको normally use करते हैं. और बेसिक रूल आता है उसमें, जब चेंज ऑफ मॉडल्स के रूल करते हैं उसमें क्लियर बताया जाता है मे चेंजेस इनटू माइट. और मेक श्योर दैट माइट जब यूज होता है तो उसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा है, बिकॉज यू नो माइट इज आल्सो ऑक्सिलरी, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा हमेशा. माइट के बाद व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी वर्ब दैट वुड बी इन इट्स बेसिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, जो आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेमन लैंग्वेज में हम वो यूज करते हैं. ठीक है, बी इसलिए हमने यूज किया माइट बी. ठीक है, मेक श्योर दीज आर द वेरी कॉमन पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग दिस पर्टिकुलर मॉडल. ओके, so next model is must. We are beginning with must. बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है. अगर हम देखें
तो सबसे ज्यादा यूजेस अगर देखें तो इस मस्ट के होते हैं, और हम डेली यूज में जो इसको देखें तो सबसे ज्यादा बेटा इसी को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। सबसे पहले आपको देता है कंपल्सन, मींस अनिवार्यता, हिंदी में बोले तो मींस करना ही करना है इस काम को। For example, you must reach the school by 7:30 a.m. अब स्कूल का टाइमिंग है वो 7:30 है, उसके बाद अगर आप आते हो तो लेट हो गए, तो इट इज कंपल्सरी टू रीच ओवर देयर बाय 7:30 am। तो मस्ट इज बीइंग यूज। यहां पे आप मे नहीं यूज कर सकते, कैन नहीं यूज कर सकते, विल नहीं यूज कर सकते, शैल नहीं यूज कर सकते। यहां आपको यूज क्या करना है? मस्ट। ओके, नेक्स्ट नेसेसिटी। अब देखो नेसेसिटी नीड में भी आता है, नेसेसिटी मस्ट में भी आता है, लेकिन जब नेसेसिटी मस्ट के साथ यूज हो रहा है तो आप सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि ये कंपल्सन वाली नेसेसिटी है। ठीक है, मॉरली तो है ही है, साथ में स्ट्रांगली नीडेड है। रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मस्ट हेल्प द वीक वंस। ओके, ये भी वो एक पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां पे अगर हम लिखते हैं रिच नीड्स टू हेल्प पुअर, तो वो भी सही था, लेकिन वो नेसेसिटी केवल एक ऑब्लिगेशन की तरह रहती, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज Command or order. For example, you must come early tomorrow. So, it is an order from someone authoritative to someone who is telling them that it is compulsory to reach early tomorrow. इट इज नॉट सजेस्टिव, यहां सजेशन नहीं है, यहां पे ऑर्डर है। यू मस्ट कम अर्ली टुमारो, यू मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये क्लियर ऑर्डर के वे में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कहता है भाई सजेशन। अब सजेशन में तो मे भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, कैन भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बात साथ में कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन। हमने बोला यू मस्ट रीड रामायणा। अब देखो रामायण जो है बेसिकली इट इज बीइंग रिटन बाय वाल्मीकि, और रामचरितमानस इज बीइंग रिटन बाय तुलसीदास। तो दोनों का डिफरेंस साथ साथ मैंने आपको बता दिया। आपको रामायण पढ़नी चाहिए, सजेस्टिवली स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां जब स्ट्रांग सजेशन की बात हो रही है तो हम बता रहे हैं क्या? मस्ट। नाउ इट कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन को हम और भी यूज करेंगे दो जगह, Ought to and should. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ऑल थ्री। मस्ट के साथ भी यूज कर रहे हैं, ought to और should के साथ भी है। इन दोनों के साथ में ना मॉरल ऑब्लिगेशन एक सजेस्टिव फॉर्म में चल रहा है, लेकिन यहां पर जब हम मस्ट लगा रहे हैं तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अभी योर एल्डर्स लिखा होता, योर अंकल लिखा होता, योर नेबर्स लिखा होता तो मस्ट की इतनी जरूरत नहीं थी, वहां पे आप ought to या should ले लेते, चल जाता। लेकिन when we are talking जहां पर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो करना ही है, at that time you have to write must. Okay, then the next is Prohibition. prohibition। पहले तो इसका मतलब समझिए, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता। क्या होता है इसका मतलब, पता है? What is the meaning? Restrictions. Restrictions, yes। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी का प्रॉपर वर्ड है निषेध, रोक लगा देना। You must not smoke in school premises. You must not smoke in hospital. People must not fish the tank. People must not fish the tank. अब ये नॉट के साथ में चल रहा है, प्रोहिबिशन है क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है। ओके,
इसके बाद बड़ा कॉमन सा डिटर्मिनेशन, फिर दोबारा से हम उसी के टच में आ रहे हैं। क्या कहता है? I must help him. So he is saying that he has the determination to help some other person and it is necessary for him to help the other person. अब देखो इसी में विल लगा दूं, I will help him, करूंगा भाई, it is not sure that I will do, ठीक है ना। लेकिन when we write must, that means I have the resource, I have everything, I will definitely help him. That is the determination to help. No excuses are there. That is why determination comes with must. And the last one, ये लास्ट वन जो है ना, आजकल हमारे केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, 9th-10th में भी आ जाते हैं, 11th-12th में भी आ जाते हैं, छोटी क्लासेस में भी आ जाते हैं। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस कहता है अगर ऐसा होता तो ये होता। क्या होता? अगर ऐसा होता तो ये होता। He comes by a car. He must be rich. He comes by a car. He must be rich. नेचुरल सी बात है, कार में आ रहा है, रिच होगा, ठीक है ना। ये हम इन्फ्रेंस ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके केस स्टडीज में आते हैं और ये 8 के 8 पॉइंट्स मॉडल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर दैट यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स एंड आई वुड सजेस्ट write at least 5 sentences of each of these categories. ये मेरा सजेशन है, आप वीडियो देख रहे हो, इसे नोटबुक में लिखो और हर टाइप के, ये नहीं करो कि यू की जगह ही कर दो, रिच की जगह पुअर कर दो, यू की जगह पे आई कर दो ना, प्रॉपर नए सेंटेंसेस बनाइए हर कैटेगरी के अंदर। दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द मस्ट in very effective manner. Is it clear? Okay, that's all for this particular video.